নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সঞ্জীৱ আৰু সঞ্জীৱ নিউজ ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ দিল্লীত, আৰু দিল্লীৰ মই এটা বিশেষ জেগালৈ আহিছোঁ। সেই বিশেষ জেগাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অৱগত কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই দিল্লী আহি আছোঁ। দিল্লীত মই কিয় আহিছোঁ সেই বিষয়টো আপোনালোকক মই এতিয়া অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিছে, এইখন হৈ গ'ল কায়া ক্লাব গ্ল'বেল। কায়া ক্লাব গ্ল'বেল ইয়াতে স্কিনৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে আপুনি ইয়াত আহিব পাৰে। বিশেষকৈ ব্ৰেটিলিগো বা আপোনাৰ যিটো আমি শ্বেতকুষ্ঠ বুলি কওঁ, শ্বেতকুষ্ঠ ব্ৰেটিলিগো, তাৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ মানে এইকাৰণে আহিছোঁ যে মোৰ এই আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, মোৰ এই চকুৰ সন্মুখতে, চকুৰ এই তলত, চকুৰ এই জেগাখনত মোৰ এটা সৰুকৈ বগা স্পট পৰিছে, আৰু সেই সৰুকৈ পৰা বগা স্পটটো ক্ৰমান্বয়ে অলপমান স্প্ৰেড হৈছে, আৰু সেই স্প্ৰেড হোৱাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰতি মোৰ এটা ধাৰণাটো অলপ মানে সঠিক হোৱা নাই যে মই একচুৱেলি মই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া বস্তু নে ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলেও হ'ব, সেই কথাটোৰ বিষয়ে মই জনা নাছিলোঁ। সেইটো কথাৰ কাৰণে মই আজি আহি অসমৰ পৰা আহি বৰ্তমান সময়ত মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ডক্টৰ মোহিত ছাৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়ে, বা স্কিনৰ যিকোনো সমস্যাৰ বিষয়ে মই পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা কিবা ডিজিজ যদি হৈছে, কিবা যদি অসুবিধা পাইছে, নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। সেয়েহে আহক আমি একেলগে সোমাই যাওঁ এই গ্ল'বেলৰ ভিতৰলৈ। আহক। এই কায়া ক্লাব গ্লোবেল इंडिया 1 नंबर रैंकिंग আছে। मैम नमस्ते। जी मैं तो आसाम से हूँ। जी आसाम से हूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों का ये पहले वीडियो देखा था। वीडियो देख के हमको मालूम हुआ है यहाँ पे विटिलिगो का मतलब ट्रीटमेंट होता है बोल के। इसके लिए हम यहाँ पे आया हूँ। अभी क्या क्या करना पड़ेगा हमको? सर ये आपका बीपी चेक होएगा जी, ठीक है, फोटो अपडेट्स करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के साथ रिकॉर्ड्स लगेंगे, डॉक्टर अपडेट करेंगे आपको। जी जी देखिए जी। ইয়াত তেখেতে কৈছে যে এতিয়া মোৰ ফটো আচলতে আপলোড কৰিব, তেখেতসকলে আপলোড কৰি পেলাই চোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিব, আৰু ডক্টৰসকলক কথা পতাৰ পিছত মই যিসকল বিশেষকৈ মানে যিসকল অসমৰ পেচেণ্ট আছে, মই তেখেতসকলৰ বাবে অসমীয়াতে এই বিষয়খিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেধৰণে আচলতে ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, কেনেকৈ আহিব লাগিব ইয়ালৈ, কেনেধৰণে ইয়াৰ লিংকবিলাক পাব, সেই বিষয়বিলাক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এখন সুন্দৰ এখন হস্পিটেল, যথেষ্ট ইয়াত এটা আচলতে টিম ৱৰ্ক হয়। ইয়াত এজন ডক্টৰে চাই পেলাই আপোনাক মানে পঠিয়াই নিদিয়ে, ইয়াতে টিম ৱৰ্ক হয়। ইয়াত বিভিন্ন কাউণ্টাৰ আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো কাউণ্টাৰতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেলেগ বেলেগকৈ ডক্টৰ বহি আছে, আৰু সেইমতে তেখেতসকলে ট্ৰিট কৰিব, আৰু ট্ৰিট কৰাৰ পিছত নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা সুফল পাইছে। আৰু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ মতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2 লাখৰো ওপৰত মানুহক তেখেতসকলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে। সেয়েহে মই ঠিক আছে, মোক মেমে মাতিছে, মই মেমৰ লগত কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। 1 মিনিট। আৰু মোক প্ৰথমতে আচলতে ৱেইট কৰাবলৈ লৈছে, মোৰ ৱেইটটো চাব তেখেতসকলে, সেইকাৰণে মই আপোনাৰ ৱেইট মেচিনত উঠিছোঁ। যথেষ্ট ৱেইট আছে মোৰ এতিয়াও, 74 হয়। আৰু এতিয়া তেখেতে মোৰ এখন ফৰ্ম ভৰি দিব। আৰু মোৰ এতিয়া BP টেষ্ট কৰিছে মেমে। जी ये पे है, और थैंक यू मैम। जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं संजीव आसाम से हूँ, आसाम से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले आप लोगों का वीडियो देखा था, जी यूट्यूब में वीडियो देखा है। यूट्यूब में वीडियो देख के आप लोगों का पूरा बात पे मेरा विश्वास आ गया, क्योंकि मेरा भी एक यहाँ पे वाइट स्पॉट निकला है। बिल्कुल ये वाइट स्पॉट निकला है। ये पहले थोड़ा खुजली टाइप का था, थोड़ा सा खुजली टाइप का था वो, तो हम सोचा था खुजली है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दागी हुआ है। ऐसे भी मेरा खान पान भी ठीक है, खान पान में मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम तो ये मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाता, मीट अंडा मछली हम कुछ खाने वाला नहीं है, इसलिए हम सोचा था कि मेरा ये सब तो नहीं होना चाहिए जी। कि हम देखा है मेरा ये थोड़ा करके मतलब स्पेस हो रहा है, बढ़ने लग गया। तो हम यहाँ पे सर्च किए हैं, यूट्यूब पे सर्च किए हैं, फिर आप लोगों को ये काया क्लब ग्लोबल के बारे में मालूम पड़ा है। और पढ़ने के बाद भी ऐसा हो गया, हम सोचता है कैसे मतलब आप लोगों को हुई है। हम पहले आप लोगों का यहाँ से कंसल्ट किया था, वीडियो कंसल्टिंग बहुत ना गया। उसके बाद भी हम सोचा कि वीडियो कंसल्टिंग मेरे लिए इतना खास नहीं लग रहा है,
तभी भी हम सोचा है कि नहीं हम अपने से देख करके हम पर्सनली आपने ला जी। बिल्कुल इसीलिए आसाम से बहुत जल्दीबाजी में आ गया हूँ वहाँ से ताकि आपको मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित विटिलिगो कंसल्टेंट। नमस्कार जी। तो एक बार आप पहले पैचेस दिखाइए मुझे। तो यहाँ पे दिखाइए, इधर भी है नहीं? हाँ, तो ये वाइट वाइट पूरा है यहाँ पे। पहले ऐसे हो गया था, थोड़ा सा खुजली हुआ था। जी। उसके बाद में हम ये मान लीजिए ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं फार्मेसी में, फार्मेसी से ऑइंटमेंट खरीद के लगा दी है। जी। जितना भी ड्राम है, ड्राम होने वाला, जैसे अभी नाम बताने के लिए हम मतलब ये कर रहा है। हाँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 ड्राम, ड्रम्स, ड्राम्स, हाँ, जितना ड्राम बॉडी है, ड्रम, वही ड्रम, हाँ। ड्राम वाला एक मेडिसिन यहाँ पे लगा जी है। जी जी। उसके बाद में थोड़ा सा सामना सील किया जैसे हो गया है। हम सोचते थे उससे फिर काला आ जाएगा, कालापन आ जाएगा। नहीं, उसकी नाई की तो काली आएगी वो। हाँ जी जी, ऐसे सोच रहा था। हाँ। लास्ट में जब तक नहीं आए हैं, नहीं आने के वजह से हमको मालूम पड़ गया नहीं ये थोड़ा कुछ गड़बड़ का है, गड़बड़ का है। इसीलिए हम दिखाने के लिए आ गए हैं। ठीक है। और अभी मेरा हाँ जी, बाकी ये और हाथ में दागी अभी तक नहीं निकला है। हम्म। हम थोड़ा फंस आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मतलब हमको मालूम हो गया कि इसका बारे में आप लोगों का वीडियो देख के जी। मालूम हो गया, क्योंकि ये हाथ में निकालने से लिप में भी आ सकता है। आता है, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ। इसीलिए बहुत जल्दीबाजी में आ गया हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ भी हुआ तो ऐसे नाखून से ऐसे कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दागी दिखाई दिया है। हाँ, हाँ। इससे थोड़ा दागी हो गया था। हम जब ये काला नहीं हो रहा है तब हमको मालूम पड़ गया नहीं ये कुछ गड़बड़ होने वाला है। जी बिल्कुल। इसीलिए हम मैं आए आपको हैं। बताता हूँ, देखिए आपकी फैमिली हिस्ट्री है कुछ विटिलिगो की, घर में किसी को परिवार फैमिली में? हिस्ट्री सर, फैमिली हिस्ट्री मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब सोता टाइम में मेरे दादाजी का यहाँ पे एक तो वाइट दागी दिखाई दिया था, लेकिन हमको इतना मालूम नहीं था। वो टाइम पे हम लोगों का गांव का आदमी बताता है আমাৰ অসমৰ মানুহ আসলে কৈ আছিলে তাত এটকা খৰ হৈছিলে বুলি, এইটো শুকান খৰ বুলি কৈছিলে। শুকান খৰ একচুৱেলি শুকান খৰ নহয়। এতিয়া বিষয়টোৰ লগত আমি অকমান ডক্টৰ ছাৰৰ লগত কথা পতাৰ কাৰণে গম পাইছো শুকান খৰ নহয়। हम देखा था एक तो छोटा सा स्पॉट दिखा था, लेकिन वही स्पॉट अभी मेरा पिताजी का भी थोड़ा थोड़ा करके पीठ का बैक में थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन छोटा 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 बिल्कुल माइन्यूट सा है, छोटा हाँ, छोटा वैसे ही। ऐसी है छोटी सी। ये पिताजी का भी अभी मिनिमम आपका 75 ईयर्स है। 75 ईयर्स में ऐसे स्किन में कुछ कुछ डिजीज निकलते रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या होता है हमारे बॉडी में, तो वो है जैसे कि आपके ग्रैंडफादर को रहा, तो उनसे आपके फादर में आया वो जेनेटिकली और वो आप में आया, मगर इसको ट्रिगर हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक अब बटन है हमारे बॉडी में उस चीज़ का, मगर ऑन उसको हम खुद ही करते हैं ड्यू टू सम, जैसे कि अगर हमें कोई और इन्फेक्शन हो गया स्किन का, या हमने कुछ खाने पीने में कुछ लापरवाही कर दी, या फिर हमारा स्लीपिंग पैटर्न इज नॉट गुड, कभी हम जल्दी सो रहे हैं, कभी हम लेट सो रहे हैं, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक इज नॉट गुड, या फिर कभी हमें परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहती हो, ये सब कुछ कुछ कारण होते हैं जिससे कि ये अपने आप ट्रिगर हो जाता है। या फिर घर में किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसके भी घर में परिवार में हाइपोथायराइडिज्म और विटिलिगो दोनों होते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि इसका ट्रिगर होना ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, और स्प्रेडिंग भी जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, अभी आप इन वाइट पैचेस की आप पिक्चर देखोगे तो ये ज़्यादा वाइट नहीं है, मिल्की वाइट नहीं है, जैसे कि विटिलिगो पेशेंट्स के नॉर्मली होते हैं अगर आप देखोगे। वो क्यों? क्योंकि अभी इनमें मेलानोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर न्यू पैचेस, दीज आर नॉट ओल्ड पैचेस। अगर यही पैचेस आप 5 साल बाद 10 साल बाद एक बार देखोगे ना बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो धीरे धीरे करके मिल्की वाइट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो स्किन की लेयर्स होती हैं उसके अंदर जो होते हैं मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, पिगमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी को कलर देता है, वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, और वो उसका रंग वाइट होता चला जाता है। आप लोगों को तो पूरा मालूम ही होगा, ये पूरा सिस्टम के बारे में मालूम है, लेकिन हम एक आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब शुरू होता है हाथ का कलर जाने वाला जो शुरू होता है ना सर, हल्का सा ये मिर्चा खाने से जो जलन होता है, हल्का 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 जलन होता है। पहले जलन मेरा ये जगह में थोड़ा सा जलन होता है। हम सोचता था कि मेरा ये कमर का जो पैंट का इलास्टिक है वो थोड़ा टाइट है, इसका वजह से शायद वहाँ पे ब्लड नहीं जा सकता है, मतलब अच्छा से मतलब प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हल्का सा जलन हुआ था। नहीं, बाद में हम जब इस पे सब ध्यान दिया है, नहीं मेरा थोड़ा यहाँ पे हल्का सा गरम गरम जैसे लगता है। गरम लगने के बाद में अभी जैसे यहाँ पे टर्स लाइट जलन से
यहाँ से पूरा अच्छा से दिखाई देता है। हम्म। और कौन सा जगह में कालाट अभी भी है, कालाट होने वाला जगह मतलब मिलन साइड जहाँ पे है उसको थोड़ा डार्क दिखाई देता है, और जो नहीं है वो थोड़ा पतला दिखाई देता है। आप अपने से थोड़ा कुछ मतलब आपने भी कर रहे थोड़ी सी हैं। अपने ऊपर रिसर्च करी है, रिसर्च बहुत किया अच्छी है। बात है, करनी भी चाहिए। हमारा शरीर है, हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जी, ठीक है। तो ऐसा होता है क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ मेलानोसाइट से डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं ना, वहाँ की स्किन भी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव और पतली होने लगती है, इसीलिए ऐसा होता है। और अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने बताया ना आपको खुजली हुई, आपने खुजलाया, वो वाइट होने लग गया, तो कभी भी खुजली हो खुजलाना नहीं है। आप खुजलाएंगे वो निशान बन जाएंगे, और फिर वो जब नई स्किन आएगी ना वो वाइट आएगी। क्यों, क्योंकि आप अगर विटिलिगो पेशेंट हैं तो उनके अंदर पहले ही मेलानोसाइट सेल्स कम है, है ना। तो अब जब नई स्किन बननी होगी कोई, तो उसमें मेलानोसाइट सेल पहले ही कम है पेशेंट में, तो वहाँ पे वो कलर दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी वो चीज़ नहीं करनी है। अगर वो आप खुजलाते भी हैं, ऊपर के एक ब्राउन कलर की पपड़ी सी जमती है जब वो हील होता है, तो उस पपड़ी को कभी भी उखाड़ना नहीं है। उसके ऊपर एक ऑइंटमेंट दूंगा, वो ऑइंटमेंट लगानी है, वो ब्राउन कलर जो है नीचे उतर जाएगा और उस कलर को वहीं के वहीं सेटिंग कर देगा, वो वाइट नहीं होना, ठीक है। अभी हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे देखिए। अभी आप लोग कहते हैं कितने पुराने पैचेज हैं, कब आपने देखा ये पैच? ये 2 महीने जैसे हुआ है। पहले आपका नीचे में था क्योंकि हम चश्मा लगाता है। हाँ। हम पहले सोचता था मेरा चश्मा की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, चश्मा की वजह से अच्छा से मतलब यहाँ पे हवा नहीं लग सकता है, हाँ। उसकी वजह से ऐसे हुआ है। हमें चश्मों की वजह से होता तो ये नाक के हाँ, यहाँ होता, जी। क्योंकि हमारा सेटल चश्मा यहाँ चश्मा नाक के में यहाँ, होता है, जी सर। ठीक है। तो इसीलिए होता है। किसी लोगों को अगर कोई रबड़ वाले चप्पल पहनते हैं नी वाले, वहाँ पे तो उनका आ भी जाता बन जाता जी। है। या फिर थोड़ा टाइट हम पैंट या अंडरवियर्स पहनते हैं तो वेस्ट लाइन पे पूरी लाइन बन जाती जी, है। जी। या कभी नेक पे कोई लेडीज मंगलसूत्र या टाइट वो पहनते हैं तो जी। नेक पे पूरा बन जाता है। तो कभी कभी वो भी ट्रिगर करता है जी। कि हमारे मेलानोसाइट सेल्स उधर उधर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जी। ठीक। तो अभी इसमें हम क्या सर करेंगे, ये वही है सर, ये मतलब इसे से मान लीजिए वो जो दागी दिखाई दिया है ना, ये हल्का सा दागी दिखाई दिया होगा यहाँ से, ये जगह से देखिए, यह जगह से देखिए, इतना तक, देखिए ये देख रहे हैं, ये लाइन सी बन रही है, लाइन सी बन रही है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल right। हम यहाँ पर ऐसा हाँ, कुछ यहाँ पे ये जगह में है, ये जगह जो एरिया टाइट होता है, नहीं, ये इधर नहीं है, नहीं, इधर है, इधर यहाँ है। पर है, यहाँ पर। बिल्कुल है, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए आपको बताऊंगा हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, एक तो मैं मेडिसिन दूंगा, हम कुछ यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करते हैं जी सर। कायाकल्प ग्लोबल पे, ताकि क्या होता है कि आयुर्वेदा तो अपने आप में बिल्कुल अच्छा है, मगर हमें क्या करना है कि जो पेशेंट्स आते हैं कि हमारी फास्ट स्प्रेडिंग हो रही है, अभी रिसेंटली हमें 4-5 पैचेस दिख रहे हैं, बॉडी फुल वाइट हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में कुछ मॉडर्न मेडिसिन देकर उसे जल्दी से स्टॉप करें स्प्रेडिंग को, और साइमल्टेनियसली हम आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर दें कि ताकि तब तक वो भी अपनी पकड़ बना लें उस डिसीज पर, और साथ साथ रीपिगमेंटेशन का प्रोसीजर भी चालू हो, है ना। हाँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम मॉडर्न मेडिसिन स्टार्ट करेंगे कि ताकि इसकी स्प्रेडिंग वहीं के वहीं रुक जाए, ठीक है। विदिन 45 to 50 डेज में स्प्रेडिंग रुक जाए, साथ ही साथ क्या हो कि पिगमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो चालू हो जाए, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे कि आपको मैं एक ऑइंटमेंट दूंगा जो आपको यहाँ लगाने हैं दोनों पैचेस पे रात को सोते टाइम। धीरे धीरे करके क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 2 तरीके के पैचेस होते हैं विटिलिगो पेशेंट्स में। पहले तो होते हैं जिनके ऊपर होते हैं ब्लैक हेयर फॉलिकल्स, ओके, और दूसरे होते हैं जिनके ऊपर हेयर फॉलिकल नहीं होते या फिर हेयर फॉलिकल हैज टर्न्ड वाइट, जो सफ़ेद हो चुके होते हैं। तो इनको ट्रीट करना होता है आसान, और ये ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। और जिनके ऊपर हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं इनको थोड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करना, और ये थोड़ा लंबा समय लेते हैं ट्रीट होने के लिए। इनमें क्या होता है, जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेयर फॉलिकल हैं हम ऑइंटमेंट लगाएंगे, विदिन 2 to 3 months इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स अपीयर होने लगते हैं, एंड दीज स्पॉट्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड कवर द होल वाइट पैच, ठीक है। इस तरीके से वो पूरे पैच को कवर कर देते हैं, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे कि ये हेयर फॉलिकल है, ये सेल, ये हमारी स्किन लेयर है। अब जो ये हेयर का जो रूट है, इस रूट के आसपास होते हैं अबंडेंस में मेलानोसाइट सेल, जो रंग देते हैं हमारे बालों को भी स्किन को भी। अब जब हेयर नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर
स्पॉट्स नहीं आएंगे और ये पैच हल्का हल्का छोटा होगा, ठीक है, साइज में इसका डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। मगर आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल होंगे, ठीक है। तो फेस को रिकवर करना इज इजी कंपैरेटिव टू द अदर बॉडी पार्ट्स। আৰু এতিয়া মই ছাৰ মোহিত ছাৰৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক আচলতে সুন্দৰভাৱে তেখেতে মোক বুজাই দিছে। তেখেতে কৈছে যে এইটো কোনো মানে ভয় খাবলগীয়া বেমাৰ নহয় আৰু এইটো মানে ইয়াৰ আচলতে ট্ৰিটমেণ্ট হয়। এটা সময়ত আমাক অসমত এই বস্তুটোৰ ওপৰত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে মানুহৰ মনোভাৱ আছিলে আৰু এইটোক চেত কুষ্ঠ বুলি কৈছিলে। এইটো কুষ্ঠ ৰোগ নহয়, একচুৱেলি কিতাপবিলাকত লিখা আছিলে চেত কুষ্ঠ বুলি। চেত কুষ্ঠ আচলতে কুষ্ঠ ৰোগ নহয়, এইটো চেত কুষ্ঠটো এইটো হৈ গ'ল মিলানোচাইটৰ কমিৰ কাৰণে বডিত আচলতে সেই বেমাৰটো ইয়াত মানে ধৰা পৰে। আৰু ছাৰে কৈছে যে মই ঠিক সময়তে আচলতে ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ তেখেতসকলৰ ব্যৱহাৰ সুন্দৰ। মই এইবাৰ আপোনালোকক জানিবলৈ মানে দিম, তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আমি কি কি খাদ্য খাব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খালে মানে আমাৰ এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি আচলতে বজাই ৰাখিব পাৰিম, বা আমাৰ কাৰোবাৰ যদি বেলেগ এনেকুৱা সৰু স্পট হৈছে সেই স্পটটো কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব পৰা যায়। এই ছাৰসকলৰ পৰা যিটো ভিডিঅ' হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লিংক কৰি মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডেছক্ৰিপশ্যন দিম। মই অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্ট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মই নিজে পেচেণ্ট আৰু ভয় খাব নালাগে, এইটো লুকুৱাই থোৱাৰ কথা নহয়, কোনো কাৰণত লুকুৱাই নাৰাখিব আপোনালোকে। মই ছাৰৰ লগত পাতোঁ কি কি খাব লাগে কি কি খাব নালাগে। सर हम क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता है उसका ऊपर में थोड़ा विचार करेंगे। बिल्कुल, खाने पीने के लिए हमें ना ज़्यादा इतना नहीं देना है अपने आप को जितना हमें पहले ट्रीटमेंट को देना है। जैसे कि अगर बीमारी होती है हमको तो हमें पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि खाने पीने का रोल तब आता है जब हम प्रिकॉशन पे रहें, ये दोबारा ना हो जाए, ठीक है। तो खाने पीने के लिए बेसिक अगर मैं बताऊं तो ये है कि हमें ब्रिंजल नहीं खाना चाहिए, रॉ टमेटोज नहीं खाने चाहिए, साथ में खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि मैंगोज, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। যে ছাৰে কৈছে যে ইয়াত আমি আচলতে টেঙা খাব নালাগে, আমি বেঙেনা খাব নালাগে আৰু আমি এইটো আমাৰ আমি কি কয় ভেন্দি খাব নালাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি অলপ এভইড কৰি চলিব লাগে। আৰু বিশেষত ইয়াৰ পৰা ড্ৰিংকিং গোটেই ছিষ্টেমটো মানে আচলতে আমি যিবিলাক এলকহলিক মানে ড্ৰিংক লয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ড্ৰিংক ল'ব নালাগে আৰু তেতিয়া খুব সোনকালে ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায় আৰু বাকী বস্তুবিলাকে খাব পৰা যায়। बाकी चीज तो खा सकते हैं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। अगर नॉन वेज भी आप खाते हैं तो नॉन वेज में आप चिकन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, मगर रेड मीट अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि लैम, बीफ, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। मगर जिस दिन भी आप नॉन वेज खाएं उस दिन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ना। গাখীৰৰ মানে বস্তু খোৱাৰ পিছত মাছ মাংস খোৱাটো আচলতে খাব নালাগে আৰু হয় যদি গাখীৰৰ বা মাছ মাংস খোৱাৰ সেই দিনটোত অন্তত মানে গাখীৰৰ প্ৰডাক্টবিলাক গাখীৰৰ পৰা বনোৱা মিঠাই হওক গাখীৰ হওক কিবা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ দৈ হওক এই বস্তুবিলাক আচলতে খাব নালাগে। এয়া ছাৰে মোক এটা পৰামৰ্শ দিছে আৰু মই নিজে উপকৃত হৈছোঁ, কথা পাতি ভাল পাইছোঁ। আৰু একচুৱেল যিবিলাক মেডিকেলত গ'লে যেনেকুৱা এটা মানে অনুভৱ হয় যে ডক্টৰে একদম বহি থাকিব, এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখি দিব, হঠাৎ আহিলে সেইখন ল'লোঁ গুচি গ'লোঁ। মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ, অসমৰ পৰা 3টা দিন 3 ৰাতি মই আপোনাৰ ট্ৰেইনত মানে টোপনি ক্ষতি কৰি আহিছোঁ। মই ঠিক আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে আৰু মই নিজে এজন পেচেণ্ট হৈ মই তেখেতৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহিছোঁ। চাই থাকক, মই আৰু পাতি আছোঁ ছাৰৰ লগত। और हमेशा मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन सर, डॉक्टर सम्यक धवन, हम हमेशा यही बोलते हैं अगर आप दूर रहते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इलाज की। आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। हमारे यहाँ पर 10 डॉक्टर की टीम है, कोई भी जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे आपसे उनकी वीडियो कॉल कराई जाएगी। जस्ट प्रोवाइड देम योर पिक्चर्स, जस्ट प्रोवाइड देम कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, जस्ट प्रोवाइड देम कि आपने पहले क्या क्या मेडिसिन ली हैं, बस दैट्स इट। हमें ये सब 3 चीज़ें चाहिए और हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यहीं बैठे बैठे आपको आपकी मेडिसिन आप जहाँ भी रहते हैं आपके घर तक आपकी मेडिसिन पहुँचाएंगे। आपको जो भी फॉलोअप करना है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है, हर 15 दिन का हम फॉलोअप लेते रहते हैं अपने पेशेंट्स का। कोई ऐसा इशू नहीं आने देते अपने पेशेंट्स को। तो ऐसा नहीं है कि अब डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस अब मैटर नहीं करता है अब इलाज के लिए। जब से ये वीडियो कॉल्स और इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं हमारे इंडिया में,
हम हर एक ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ছাৰে কৈছে যে তেখেতসকলৰ 10জন ডক্টৰ থাকে, 10জন ডক্টৰৰ এটা টিম থাকে, গোটেই টিম ৱৰ্ক হয় আৰু সেই টিম ৱৰ্কটোৱে তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে আচলতে কৰিব পাৰে। আপুনি অসমতেই থাকক, বিহাৰতে থাকক, নাইবা ইউপিতে থাকক, য'তেই থাকক আপুনি তাৰ পৰা সুন্দৰভাৱে তেখেতসকললৈ আপুনি এখন ফটো পঠাব পাৰে। আপোনাৰ যিটো জেগাত সেই আচলতে স্পটটো হৈছে তাৰ এটা ফটো পঠাব পাৰে। সেই ফটোটো চাই তেখেতসকলে এটা কনচাল্ট কৰিব, কনচাল্ট কৰি তেখেতসকলৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ মেডিচিন ট্ৰিটমেণ্ট আচলতে তাতে দিব পাৰে। আৰু সেইটো কথা কাৰণেই আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হ'ব। কিন্তু মই মনৰ শান্তিৰ কাৰণে আচলতে মই ইয়ালৈ গুচি আহিছিলোঁ। মনৰ শান্তি মই তাৰ পৰাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তথাপিও মই সৰু সৰু কিছুমান স্পট আছিলে, কিজানি সেইবিলাক স্পটো পিছত বিপদত পৰিব পাৰোঁ, সেইটো কথা কাৰণে মই দেখুৱাবলৈ কাৰণে গুচি আহিলোঁ। আৰু মই ছাৰৰ পৰা এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট ল'ম, তেখেতৰ পৰা মেডিচিন ল'ম, মেডিচিন লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিম। মই পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি যাম। আৰু অসমত যদি কোনোবাই যদি এই বিষয়টো যদি বুজাত অকণমান খেলিমেলি হয়, মই ছাৰসকলৰ পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰিব পৰা এটা নম্বৰ ল'ম। সেই নম্বৰটোত আপোনালোককো মই কেতিয়াবা হয়তো কথা পতাই দিব পাৰিম। বেছি ডাঙৰ কথা নহ'ব সেইটো কথা কাৰণে। ঠিক আছে, मैं सर सर और थोड़ा सा एक बता दीजिए, यहाँ पे स्ट्रेस लेना बहुत ये बात है ना? ये बिल्कुल, स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल करता है हमारे विटिलिगो पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो विटिलिगो को ट्रिगर करते हैं। उसमें स्ट्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमें पहले स्ट्रेसफुल, आजकल सबकी लाइफ ऐसी है, स्ट्रेसफुल लाइफ चलती है, मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट रहती है, कभी मॉर्निंग नाइट शिफ्ट रहती है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, उससे कभी कभी विटिलिगो पैचेस ट्रिगर होते हैं। फर्स्ट थिंग, अब हमें स्ट्रेसफुल लाइफ तो चल रही है, साथ में हमारे पास विटिलिगो पैचेस भी आ गए, तो लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने विटिलिगो पैचेस देखते हैं और उसके बाद फिर वो और स्ट्रेस में आ जाते हैं। उस स्ट्रेस से फिर वो विटिलिगो पैचेस और बढ़ते हैं, फिर वो और स्ट्रेस में आते हैं। तो इस चक्कर में वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ठीक है, और उसी चक्रव्यूह को हमें तोड़ना है और स्ट्रेसफुल लाइफ अपनी खत्म करनी है। आप जो भी स्ट्रेस है आप हमको बताएं, हम आपका हर एक चीज़ से सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ से आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। बस स्ट्रेस नहीं लेना है, ट्रीटमेंट टाइम से लेना है, इट विल गेट ट्रीटेड। यही मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन सर और डॉक्टर सम्यक धवन सर हमेशा अपनी वीडियोस में बोलते रहते हैं कि स्ट्रेस कभी नहीं लेना है। आपको कुछ भी डाउट होता है, कभी भी कुछ भी क्वेरी होती है, आप बेझिझक यहाँ पे कॉल कीजिए। 9 to 5 वी आर अवेलेबल फॉर यू ओनली, एंड सारी की सारी जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ইয়াত ষ্ট্ৰেছ লোৱাৰ কথা যিটো কৈ আছে, আমি আচলতে মানসিকভাৱে যি ভাগি পৰোঁ, সেই মানসিকভাৱে এই বিষয়টো কেতিয়াও ভাগি পৰিব নালাগে। আপুনি খুব সোনকালে খালি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু যোগাযোগ কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট হয়, ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1ত আছে যিখন মেডিকেল, সেইখন মেডিকেলতো মই আপোনালোকক আজি লগত লৈ আহিছোঁ। এইকাৰণে লগত লৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা সকলো মানুহ উপকৃত নহ'লেও যিসকল আচলতে পেচেণ্ট, যিসকলে ষ্ট্ৰেছ লৈ আছে, যিসকলে মানসিক মানে দণ্ডচাপত ভুগি আছে, তেখেতসকলে অন্ততঃ এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এইখিনিকে কৈ মই ছাৰৰ পৰা বৰ্তমান মই ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ, তেখেতসকলৰ পৰা মেডিচিনখিনি লওঁ আৰু কেনেধৰণে মেডিচিন খাব লাগে সেইখিনি কথা মই তেখেতসকলৰ লগতে পাতি ইমানখিনিকে ক'লোঁ। কৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ইমান সময় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। और सर को मैं नमस्कार जनाइছোঁ। सर बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि हम आसाम से आए हैं, हम नहीं सोचा था पहले इतना अच्छा ट्रीट यहाँ मिलेगा बोल के, क्योंकि हम लोग देखा है बहुत बड़ा वाला मतलब ये सिटी में जाने से कोई छोटा मोटा आदमी का बात पे इतना ध्यान नहीं देने वाला डॉक्टर भी मिला है। लेकिन अभी आप लोगों के बातचीत करने के बाद में ये बात मेरा मन से पूरा निकल गया है, क्योंकि डॉक्टर तो हम लोग भगवान मानता है, इसीलिए प्रणाम।